वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रॉयल ब्रेन्स हियर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे प्रोव्स विच वी कॉमनली यूज इन आवर लैंग्वेज। समटाइम्स we not speak fluently in English, but in Urdu, in Hindi, in Kashmiri, in the mid, we sandwich them. We use them in the mid. So, what are those commonly used probes in our broken or Kashmiri or Hindi or English? In English, not English. So that are the first one starts with this. A word to the wise is enough. What is that? समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है, ठीक है ना। समटाइम्स वी से दैट किसी को हम कुछ इशारे में ही बोलते हैं, ठीक है ना, सारा ओपनली नहीं बोलते हैं। सो फॉर दैट वी यूज हे अ वर्ड टू द वाइज इज एनफ। मेक सेंटेंस इन द कमेंट बॉक्स। द सेकंड वन, अ वूफ इन शीप्स क्लोथिंग। इंपॉर्टेंट, अ वूफ इन शीप्स क्लोथिंग। वूफ किसको कहते हैं? यस, अ वूफ इन शीप्स वाइल्ड एनिमल, वो जो भेड़िया क्या उसको कहते हैं। अ वूफ इन शीप्स क्लोथिंग, मुंह पे राम राम बगल में छुरा। इन इंग्लिश वी से अ वूफ इन शीप्स क्लोथिंग। जो सामने कुछ और दिखा है लेकिन अंदर से उसके प्लान्स, उसके इंटेंशंस बहुत खराब हो, ठीक है ना। जैसे कोई बंदा हमारे सामने आता है, ही वेयर्स इनोसेंट फेस, कुछ बताता है मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन अंदर से जब हमें पता चलता है कि वो एक वूफ है शिप्स क्लोथिंग में, दैट मीन्स वही मुंह पे राम राम बगल में छुरा। बाय दिस वी कैन अंडरस्टैंड। ओके, इंपॉर्टेंट proverb, that's every cock fights best on its own jungle. अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइट नाउ इन Bamina. So if I, for example, start hurling, derogatory words at you in my own room, so you may say me, sir, every cock fights best on its own dunghill. अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। एक बार सर Bamina से बाहर आ जाओ, ठीक है ना, हमारे डिस्ट्रिक्ट में आ जाओ, फिर दिखाता हूँ वहाँ पे, ठीक है ना। सो फॉर दैट वी कैन यूज एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन इट्स ओन दैट। नॉट ऑन दिस, इफ यू विजिट एनी ऑफिस फॉर डॉक्यूमेंटल वर्क, if any government official or if any officer rebukes you there or beats you there, but that office is in his possession, you cannot do there anything. You can simply say that, hey, every cock fights best on its dunghill. Come on the streets, I will let you. I will show you that. Proverb. Okay. That's hey important. In Kashmiri we use that. No place like home. East or west, home is the best. No place like home. East or west, home is the best. जिसको हम कहते हैं घर बंधरी घर सासा बरने सा। दैट मीन्स एक्चुअली कि जब हम घर से बाहर निकलते हैं किसी जगह, फिर हमें घर की याद आती है। लेकिन हम कहते हैं कि जब पढ़ने जाते हैं, फिर जब 5-6 साल देने होते हैं अब्रॉड किसी कंट्री, फिर हमें घर की याद आती है, अपने मम्मा की, पेरेंट्स की, अपने वेस्ट की, बाकी तो वहाँ पे हमें याद आता है घर। दिस प्रोवर्ब suits for that very situation. Hey, east and west, home is the best. That means no place like home. East and west, home is the best. To make a futile effort at the 11th hour. To make a futile effort at the 11th hour. What is that? Kashmiri में हम कहते हैं ना कि nerve is cruel खन. Means when the exams are at hand, when the exams are around the corner, you say that, hey, now I have to start preparing. Hey, where were you in the whole year? You had enough time, but you have wasted it in playing games, playing, for example, cricket. Now your exams are at hand, your exams are near. Now you are starting preparing. So for that you can say that, hey, it's to make a futile effort at the 11th hour. Or simply, if you go through the literal meaning of this proverb, that if any building is, may God forbid, if any building has got fire, is it? It's burning now, and at the same time you are starting digging the well. For what? So anybody can tell you that, hey, you are making a futile effort at the 11th hour. So nerve is cruel seldom by. Hey, जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं है। That means actually अगर कोई आपको कहता ना कि आप आ जाओ बाहर, ये करता हूँ वो करता हूँ, ये सादा ज़रा मुझे मत पकड़ो, मतलब मुझे पकड़ो, ठीक है, मैं इसको ये करूँगा वो करूँगा, एंड वो खाली गरजते हैं, वो बरसते नहीं है। सो उस टाइम हम कह सकते हैं, हे डोंट शो मी योर एटीट्यूड, barking dogs seldom bite. जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं है। जैसे कि उसमें आप पता नहीं किसमें, वो मुझे नहीं याद है, जिसमें वो कहता है कि मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, ठीक है ना। हाँ, सेम। और कुछ लोग ऐसे होते हैं वो खाली बोलते हैं, करते नहीं है। एंड वी वुड से दैट, हे, barking dogs seldom, idle brain or idle mind is the devil's workshop. बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। खाली दिमाग शैतान का घर है, एंड आइडल ब्रेन और माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। जब आप बैठे होते हैं ना डियर स्टूडेंट, कोई काम नहीं होता है,
तो आप ऑटोमेटिकली आपका जो ये ऑप्टिमिस्टिक माइंड होता है, आपको जो पॉजिटिव माइंड होता है ना, नेगेटिव थॉट्स उसकी जगह स्टार्ट हो जाते हैं. देन व्हेन यू आर आइडल, व्हेन यू डोंट डू एनी वर्क, फॉर एग्जांपल जो है बड़ा फॉर एग्जांपल लीव फॉर अ मंथ, ओके, लेकिन घर में करने को कुछ नहीं है. लेकिन अगर आप कुछ अच्छा नहीं करेंगे ना, सो दिस स्पेस, दिस एम्प्टी टाइम कैन बी ग्रैब्ड बाय द डेविल्स. दैट मीन्स आपको नेगेटिविटी की तरफ लिया जाएगा. चलो अब इसके साथ लड़ाई करते हैं, चलो कोई गेम खेलते हैं, ठीक है ना. फॉर एग्जांपल चलो कहीं जाते हैं घूमने के लिए 1-2 फॉर एग्जांपल वीक्स तक. सो दैट मीन्स इम्पोर्टेंट टाइम आपका वेस्ट हो जाता है मीन्स नेगेटिविटी की तरफ. ओके, सो इसलिए कहा जाता है कि एन आइडल माइंड और ब्रेन इज द डेविल्स वर्कशॉप. ओके, सो बैठा मत क्या करे, कुछ ना कुछ क्या करे, बट पॉजिटिव अच्छा जिसके फ्रूट्स. These were some important proverbs which I have discussed with you. So if you have understood them well, put your comments with examples in the comment box. I will check them and reply back. Stay tall.